Welcome to the video on Robert Frost, an eminent American poet. In this video, we shall talk about his achievements and awards. कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि सुप्रसिद्ध अमेरिकी कवि हैं, उनकी इस वीडियो पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उनके उपलब्धियां और उनके द्वारा अर्जित किए गए पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। In 1912, Frost sailed with his family to Great Britain, settling first in Beaconsfield, a small town outside London. His first book of poetry, A Boy's Will, was published the next year. इस वीडियो में हम कवि के उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने देखा इससे पहले की वीडियोस में कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस परिवार में पैदा हुए। उनके माता पिता बहुत अच्छे परिवार के थे। उसका प्रभाव उनकी लेखन शैली पर भी पड़ा, उनके बचपन के अनुभवों पर भी पड़ा और कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इतना अच्छा कवि बनने में ये सारे कारक बहुत सहायक सिद्ध हुए। We have seen that the birth and childhood of Robert Frost, the lineage to which he belonged, all these have contributed greatly to his becoming a great poet of the American platform. Now let us see the journey further on, which goes on to his achievements and awards. In 1912, Frost sailed with his family to Great Britain, settling first in Beaconsfield, a small town outside London. We have seen that he has never been stable. He was always on the move, traveling places and changing and switching over certain occupations. हमने देखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जगह स्थान परिवर्तन भी बहुत करते थे और अपने कार्य में भी परिवर्तन बहुत करते थे। वो टिक करके एक काम नहीं करते थे, बदल बदल कर काम किया करते थे। इसी क्रम में 1912 में वो ग्रेट ब्रिटेन के पहले बीकन्सफील्ड नाम के एक छोटे से शहर में आए, जो कि लंदन में है, लंदन के बाहर की साइड है। His first book of poetry, A Boy's Will, was published the next year. And the very next year, he settled down and got his next book published, which was A Boy's Will. In 1915, during World War I, Frost returned to America, where Holt's American edition of A Boy's Will had lately been published, and bought a farm in Franconia, New Hampshire, where he launched a career of writing, teaching, and lecturing. We see that in 1915, during the First World War, he returned to America. Now, because he was always on the move and always willing to change places, he shifted from Great Britain to America during the First World War. हमने देखा कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने परिवार के साथ अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गए थे, where Hall's American edition of A Boy's Will had lately been published, and his book A Boy's Will, creation A Boy's Will had been published. यहाँ पर देखा कि A Boy's Will नाम की उनकी कृति, उनका लेखन प्रकाशित हो गया था। यहाँ पर उन्होंने एक फार्म खरीदा फ्रैंकोनिया, न्यू हैम्पशायर में। He launched a career in writing, teaching and lecturing.
और यहाँ पर उन्होंने इस फॉर्म पर एक नया करियर लॉन्च किया, एक नए सिरे से अपना व्यवसाय शुरू किया। यह व्यवसाय था राइटिंग, टीचिंग एंड लेक्चरिंग का। पूरी तरह से पढ़ने पढ़ाने का इन्होंने सिस्टम क्रिएट किया, जिसमें बच्चों को राइटिंग, रीडिंग, टीचिंग, लेक्चरिंग इस तरह की विधाओं से अवगत कराया जाता था। फ्रॉस्ट taught English at Amherst College in Massachusetts, notably inspiring his students to account for the innumerable sounds and pitches of spoken English language in their writing. Now here we find that Robert Frost has developed into a prominent literary figure temperamentally as well as in his doership. His line of action too has gone into the field of literature, and he is not only doing his own creations, he is involving other students in the same field. यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने एमहर्स्ट कॉलेज में, मैसाचुसेट्स में अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित करना शुरू कर दिया। और स्टूडेंट्स को जब प्रेरित किया तो उनका जो मेन फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी था या फील्ड ऑफ एक्शन था, वो था साउंड्स एंड पिचेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज इन देयर राइटिंग। व्हेन द स्टूडेंट्स रोट, what was the sound and pitch of those innumerable words that they were using, what sounds were being created, what was the pitch of those sounds, and how they affected their writing. यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने स्टूडेंट्स को इस विधा से अवगत कराया कि वो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों के ध्वनियां होती हैं, स्वर होते हैं, उन स्वरों में उतार चढ़ाव होता है और उन सब का अर्थ होता है, उन सब का संबंध होता है राइटिंग से और उस राइटिंग की इफेक्टिविटी से। तो ये सारी बातें वो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिखाने लगे। He called his colloquial approach to language the sound of sense. और उन्होंने अपनी जो अप्रोच थी, अपना जो सिखाने की शैली थी, उसका नाम रखा द साउंड ऑफ सेंस। तो हमारी जो साउंड को लेकर के जो हमारे सेंसेस की कनेक्टिविटी है, उसको उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया। फ्रॉस्ट वन अ सीरीज ऑफ प्राइजेस, और इसी क्रम में उन्हें कई इनाम भी मिले। एंड दिस इज हियर दैट द अवार्ड विनिंग फेज of Frost's life began. He won many prizes, especially the Pulitzer Prizes, which are very much prominently mentioned when we talk about Robert Frost. जब भी हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की चर्चा करते हैं तो उनके द्वारा अर्जित किए गए प्यूलिट्जर प्राइजेस की चर्चा विशेष रूप से होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट has to his credit the following prizes for his literary creation. जो प्यूलिट्जर प्राइजेस की सीरीज है वो इस तरह से है। इन 1924 फॉर न्यू हैम्पशायर अ पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स। पहला इनाम उन्हें 1924 में मिला, जिसमें अ पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स था। एंड नेक्स्ट वाज 1931 फॉर कलेक्टेड पोएम्स। सेकेंड प्यूलिट्जर उनको मिला 1931 में, जो कि कलेक्टेड पोएम्स के लिए था। इन 1937 फॉर अ फर्दर रेंज। द नेक्स्ट अवार्ड वॉज वन बाय हिम इन 1937 फॉर अ फर्दर रेंज। तीसरा पुलित्जर अवार्ड उन्हें 1937 में मिला अ फर्दर रेंज के लिए। इन 1943 फॉर अ विटनेस ट्री, एंड द फोर्थ वन ही वन in 1943 for a witness tree. चौथा पुलित्जर अवार्ड उनको 1943 में a witness tree के लिए मिला। In 1960, Frost was awarded a United States Congressional Gold Medal in recognition of his poetry, which has enriched the culture of the United States and philosophy of the world, which was finally bestowed by President Kennedy in March 1962. 1960 में फ्रॉस्ट को
यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला। ये गोल्ड मेडल किस उपलक्ष्य में मिला, इसके बारे में जो डिक्लेरेशन था वो डिक्लेरेशन ये था, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज पोएट्री, इनके काव्य को उद्धृत करते हुए, इनके काव्य को एक्नॉलेजमेंट देते हुए, रिकॉग्निशन देते हुए ये इनाम दिया गया था, which has enriched the culture of the United States and philosophy of the world। इस इनाम के का कारण था कि यूनाइटेड स्टेट्स के कल्चर को बहुत संबल मिला था इनकी पोएट्री से, और वर्ल्ड की फिलॉसफी को, पूरे विश्व के दर्शन को बहुत सपोर्ट मिला था रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम से, which was finally bestowed by President Kennedy in March 1962। और ये अवार्ड जो कि 1960 में इनको डिक्लेयर कर दिया गया था, फाइनली 1962 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इनको व्यक्तिशः दिया था। In 1962, he was awarded the Edward McDowell Medal for outstanding contribution to the arts by the McDowell Colony. After this, in 1962, he was awarded the Edward McDowell Medal. Another medal, which was very prestigious, was awarded to him for his outstanding contribution to the arts. Now, his contribution to the world of literature, arts, philosophy, social support was highly acknowledged by literary persons and the rest of the society। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने न सिर्फ साहित्य जगत में काम किया था, बल्कि उन्होंने समाज के लिए, जीवन दर्शन के लिए, आम जनता के लिए अपनी राइटिंग्स के थ्रू बहुत काम किया था। इसलिए 1962 में एडवर्ड मैकडोवेल मेडल उन्हें इसी उपलक्ष्य में दिया गया था। Let us see the glossary of important words and phrases. Now let us see the important words and phrases which will help us understand the awards and achievements of the writer। यहाँ कुछ शब्द और वाक्यांश देखते हैं जिनसे हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उपलब्धियां और उनके द्वारा लिए गए इनामों के बारे में समझने में आसानी होगी। Sailed, used about a boat or ship and the people on it to travel on water in a ship or boat of any type। नाव या जहाज और उसकी सवारियों का नदी या समुद्र में, जल में यात्रा करना। To travel in and control of a boat with sails, especially as a sport। पाल वाली नाव में यात्रा करना विशेषतः एक खेल के रूप में। नाव या जहाज और उसकी सवारियों का नदी या समुद्र में, जल में यात्रा करना। लॉन्च, to send a ship into water or a spacecraft into the sky। लॉन्च का अर्थ है नए जहाज को पानी में उतारना या अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजना। To start something new or to show something for the first time। कोई नया काम शुरू करना या किसी वस्तु को पहली बार प्रदर्शित करना। Inspire, to make somebody want to do or create something। कुछ करने या रचने की इच्छा उत्पन्न करना, प्रेरित करना। To make somebody feel, think or do something। किसी को कुछ अनुभव कराना या सोचने के लिए प्रेरित करना। अनुप्राणित कर देना, जगाना, मन के अंदर से एक सृजन की इच्छा को जागृत कर देना। पुलित्जर प्राइज, द पुलित्जर प्राइज इज एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म,
literature and musical composition within the United States. The Pulitzer Prize was established over 100 years ago to honor exceptional achievements in journalism. Since its inception, the award has grown to include 21 different categories ranging from literature to musical composition. The prize is named for Joseph Pulitzer, a newspaper journalist with a fascinating life. पुलित्ज़र पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो समाचार पत्र, पत्रिका तथा ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य रचना व संगीत रचनाओं के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना लगभग 100 वर्ष पूर्व पत्रकारिता के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए की गई थी। अपने उद्गम से अब तक यह खूब विकसित हो चुका है और वर्तमान में इसका विस्तार 21 श्रेणियों तक हो चुका है, जिसमें साहित्य और संगीत सम्मिलित हैं। इसका नाम एक बहुत ही रोचक पत्रकार जोसेफ पुलित्ज़र के नाम पर रखा गया है। सीरीज, कैटेगरी, रेंज, क्लास, रैंकिंग, सीरीज, रैंक, स्ट्रिंग, ट्रेन, श्रृंखला या श्रेणी। The word series is here referred to the long chain of awards that Robert Frost won in a sequence, one after the other. हमने ये देखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो इनाम जीते थे, जो पदवियां हासिल की थीं, जो एक्नॉलेजमेंट्स, जो लोगों के द्वारा दिए गए सम्मान उन्होंने प्राप्त किए थे, वो एक क्रम से उनको मिले थे। और वो क्या था? वन आफ्टर द अदर। उनको एक के बाद एक मिला। एक पुलित्ज़र अवार्ड मिला, फिर कुछ अंतराल पर दूसरा मिला, उसके कुछ अंतराल पर तीसरा मिला और उसके कुछ अंतराल के बाद चौथा मिला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्हें एक सीरीज में, एक चेन के रूप में अवार्ड्स मिले थे। उसके बाद उन्हें मेडल भी मिला और आगे भी कई सम्मान मिले थे। तो इस तरह से ये जो सीरीज बनी, श्रृंखला बनी अवार्ड्स की, यह श्रृंखला हमें बताती है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अंदर कंसिस्टेंसी थी। उनके अंदर एक तरह का सृजन को लेकर के निरंतरता का पुट था और उस निरंतरता के पुट में ही वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, उन्हें अवार्ड्स, मेडल्स, एक्नॉलेजमेंट्स मिलते चले गए। अवॉर्डेड टू गिव समथिंग टू समबडी एज अ प्राइज, पेमेंट, एटसेट्रा। अवॉर्डेड का मतलब है पुरस्कार देना या धन राशि देना किसी भी व्यक्ति को उसकी किसी उपलब्धि के लिए सम्मान स्वरूप या एक टोकन के फॉर्म में जब कुछ दिया जाता है तो वो अवार्ड कहलाता है, वो पुरस्कार कहलाता है। और ये प्रतीक, या तो ये प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया जाता है या धन राशि के रूप में दिया जाता है। इस तरह के अवार्ड्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक सीरीज में मिले थे। रिकॉग्निशन,
The fact that you can identify somebody or something that you see. किसी को पहचानने की क्रिया. The act of accepting that something exists is true or is official. किसी का सत्य या आधिकारिक होने के रूप में मान्यता देने की क्रिया. रिकॉग्निशन, किसी चीज को मान्यता देना, किसी चीज को ये स्वीकार कर लेना कि इस चीज का अस्तित्व है और इस अनुपात में है, या किसी को पहचान लेना, ये होता है रिकॉग्निशन. तो यहां पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो रिकॉग्निशन मिला, जो समाज के द्वारा या लिटरेरी जगत के द्वारा सम्मान मिला, रिकॉग्निशन मिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट था. दुनिया ने माना, लिटरेरी दुनिया ने माना, विश्व ने माना कि ये ग्रेट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वास्तव में इनकी कृतियों में, इनके सृजन में बहुत दम है, और ये न सिर्फ अपने राष्ट्र को बल्कि पूरे विश्व को सम्मान देते हैं और खुद इसके बदले में सम्मान पाने की योग्यता रखते हैं. We see that the literary world had acknowledged, had recognized that Robert Frost was a writer of great caliber, and he was sending his literary messages to the world to the extent that not only his own country was the beneficiary, but the whole global society, the whole world, the readers of the whole world, the critics of the whole world were the beneficiaries of his literary creations. For this reason, he was given great recognitions and awards, which we see in the form of the awards and achievements that have been conferred to him during his lifetime. Thank you. Dhanyavad.